Very good morning to everyone and welcome to the Utthan session today. So we are in the third session of the series that we started, which was how to handle others' mistakes. And we'll continue that. Today's the third session and we have Sangeeta Didi already joined. Didi, welcome. Om Shanti and over to you. Om Shanti. Good morning, all of you. Warm welcome also to all of you to join. And with homework, this is our school days, right? Yeah, whatever we do. So we have to be prepared with homework. Is it right? तो होमवर्क किया था कैसे दूसरों की मिस्टेक के अपने आप को मुझे how do I handle myself when others are doing mistake. So this is a so powerful action where every minute we are encountered with. Is it true? क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ गलती करता रहता है. And therefore we know we can use this method many times. So this is with others' mistake. Now, today, so whatever others have done, how do we contribute in increasing the mistake? वो हमने किया था कि जितनी बार I create a thought about them, they are like that, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ये तो ऐसे करता है. अब हम ये भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी रखते हैं उसको, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. एंड देन वी इवन प्रेडिक्ट है, ये तो ऐसा ही करता रहेगा, मतलब ये कभी सुधरेगा नहीं. So it means not only that we are giving curse or blessing, whatever, but at the same time, let us be ready that we are contributing to his sanskar, to his continuation of doing mistake. This is what we are doing. तो इसलिए एक गलती करता है और हम सब कितनी बार गलती करते, कितनी बार हम सब गलती करते, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार या कितने बार, बताओ. जितनी बार सोचते हैं उतनी बार मिस्टेक करते हैं. This is called contributing to their mistake, to their sanskar. So one is that, and second is, what about self mistakes? खुद के किए हुए कर्म, उसका क्या हो, खुद के mistakes. Now see, it's very simple. We'll take an example. Today I wore a white dress and I kept it, I wanted to work. तो मैंने टेबल बीचों बीच रखी, चेयर करी, टेबल रखी एकदम बीच में. एंड देन आई हैड अ लॉजिक कि ये काम है, it is not possible to move that side. I had all this logic, so I kept the table here. So, and it was in very much in the middle. It has that the location is not at all good, but I had my logic. Now, tomorrow I will wear yellow dress. And again I come to that place. अब बीचों बीच टेबल रखी है, क्या हो जाएगा? क्या ड्रेस चेंज होने से अब मुझे ठोकर लगेगी? I'll get hurt, I'll get injured because एकदम बीच में रखी. तो क्या ड्रेस के चेंज होने से मेरा इफेक्ट चेंज होगा? ड्रेस चेंज हो गया, व्हाइट ड्रेस में टेबल रखी थी, येलो ड्रेस में अब उसका इफेक्ट आ रहा है. पॉसिबल है? ड्रेस ही तो चेंज हुआ ना. तो therefore yesterday whatever mistakes I did in last costume, so that all the effects of those mistakes I'm will come today, होगा ही.
और प्लस नाउ, सो देयरफॉर व्हेन येस्टरडे जब मैंने वो मिस्टेक किया था, तो मेरे पास एक रीजन था. नो, आई हैड दिस रीजन कि अच्छा रहता है, आई बिकॉज इस आई कैन वर्क नाइसली. नो, आई हैड ऑल द चॉइस, जस्टिफिकेशन कि नहीं इसी तरह. एंड देयरफॉर आई फाइनली डिसाइडेड कि नहीं, कुछ भी हो जाए, I will keep the table like that only. So whatever yesterday I did, it was my karma. And that karma, that mistake had a logic. So one is justification, logic, and unaware of the consequences of tomorrow. Because the table was kept like that only. It was not taken out. It was kept in the same position. So अब today, now the same table आज मेरे लिए क्या बन गया? नेक्स्ट डे पहला वो एक जस्टिफिकेशन था, बट नाउ इट विल बिकम द रीजन फॉर माय हर्ट. चोट लगने का कारण बनेगा. अब जब चोट लगेगी उसको, तब नाउ अगेन उसमें चॉइस है. उस चोट लगने के बाद मेरे पास अगेन चॉइस है. what are the options in that after I get hurt? One is I can scold. क्या है समझ में नहीं आता, किसने टेबल रखी. Second, I'll get, there is a wound, so there is a deep injury. I might go on blaming myself also. क्या है पता नहीं, कभी भी मेरा ठीक ही नहीं है, आज का दिन ही शुरुआत अच्छा नहीं हुआ. तीसरा, I will burst out. I will blame others. And fourth है, I will take the responsibility of that table. Now, in all the cases, I'm unaware that it was my table, I had put it, and I'm getting it. तो if मुझे ये चारों में से जो भी रिस्पॉन्स, अब नाउ इफ आई गो ऑन क्रिएटिंग हर्ट, क्रिएटिंग ब्लेम, क्या है ठीक से नहीं रखा, समझ में नहीं आता, what I'm doing, I am creating another karma. I am doing another mistake. So after the consequence of everything, it is, then there is just the effect. मतलब, sorry, after the doing of the thing, then there is effect. Now, once that effect is there, then it is our choice. Did I have a choice to think? Variety of choices था कि ये सोचना, ब्लेम करना, स्कोल्ड करना, हर्ट होना, या अंडरस्टैंड करना कि इट इज द रिजल्ट ऑफ माय कीपिंग लास्ट नाइट दिस वे. ये चारों चॉइस थी मेरे में. अब इसमें से मैंने जो चॉइस यूज किया, सो दैट चॉइस, what will it be? जो टेबल आया, टेबल पड़ा था, टेबल से मुझे चोट लगी, टेबल रखा, ये मेरा कर्मा था, मिस्टेक थी. टेबल से चोट लगना, ये मेरा इफेक्ट था, कॉन्सिक्वेंस था. अब ये इफेक्ट को, अब जो वापस चोट लगने के बाद जो एनर्जी क्रिएट की, वो क्या होगा? वो हमारा नेक्स्ट कर्मा होता जाएगा. राइट?
So yesterday का mistake, when I did that mistake yesterday, that time itself I wrote my destiny. So yesterday doing anything which I did yesterday, that was doing, it was a karma. But today I got hurt, it is the effect. वो कॉज था, ये इफेक्ट है, तो उसको मैं रोक नहीं सकती. क्यों? कि द मोमेंट आई वॉट एवर आई डिड येस्टरडे, आई केप्ट द टेबल, मैंने उसी समय डेस्टिनी लिख दी कि आज मुझे टेबल का चोट मिलेगी टेबल से. तो अब मैं एक बार मैंने कर दिया, आई एम रेडी, I have to face the destiny which is called, this is called predestined. इसलिए उसको predestined कहते हैं. अब now whatever the responses I create, these are my karma. तो now अब ये जो response है वो again मेरा next effect create करेगा. तो जितना मैंने रिस्पॉन्स जितने समय तक ये करते गई, उतने समय तक मैंने अपनी डेस्टिनी लिख दी. सो आई गो ऑन ब्लेमिंग, क्या है, लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, समझते नहीं है, पता नहीं मेरा क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, ये भी व्यक्ति ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है. सो वॉट एवर ठीक नहीं है ऑटोमेटिक आ गया, वो मेरा इफेक्ट है. इसलिए कहते हैं जो भी रिलेशंस मिलते हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते, क्या बोलते हैं, 7 जन्मों तक का संबंध है. सो समवेयर उसके साथ इंटरेक्शन हुआ था, एंड दैट इज द रीजन वो वैसा रिलेशनशिप, वो व्यक्ति आया, एंड उस व्यक्ति के साथ वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसे करता है. सो वो जो मेरे साथ करता है उसका कारण क्या है, रीजन कौन है, I which I did yesterday in the white dress, and today I'm wearing a yellow dress. तो इसलिए whatever responses मैं क्रिएट कर रही हूं वो मेरा नेक्स्ट कर्म होगा. और फिर अगर इस रिस्पॉन्स में तो जो चीज अंटिल द इफेक्ट मेरे व्हाट इज इन माय हैंड, सो येस्टरडे का डूइंग कर्मा था, एंड वॉट एवर आई हैव डन इट, आज जो मुझे मिल रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है. बिकॉज द मोमेंट आई डिड इट आई रोट इट, सो आई हैव रिटन माई डेस्टिनी. सो दैट is not in my hand because it is already written. No one can rub it, wipe it, sideline it. कभी भी कहीं ना कहीं कैसे भी आएगा मुझे. अब लेकिन जो चीज वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अब वो जो मिला मुझे, अब क्या होगा, जो मैं क्रिएट कर रही हूं, एनी एनर्जी क्रिएटेड, now it is in my hand. In other words, it is my karma. In other words, वो मेरे पूरे हाथ में है. तो कल तक अच्छा नहीं था क्योंकि कल मैंने लिख दी, लेकिन अभी मैं अच्छा कर सकती हूँ. तो अभी कोई भी कारण था कि वो व्यक्ति मिला, वो मुझे हमेशा, वो बच्चा है, बहुत जिद करता है, कोई भी मेरी आज्ञा पे नहीं चलता है, ही इज ऑलवेज abusing me, he's always creating a problem to me, fine, that is my destiny. Written by whom? Written by whom? सब लोग लिखे चैट में, written by whom. Let's see if we are confident. So written by yes, अंडरलाइन करके लिखो तो पता चल जाएगा. वंडरफुल.
माई सेल्फ। तो मेरे साथ चाहे वो बॉस के रूप में है, चाहे वो कलीग के रूप में है, चाहे वो फ्रेंड के रूप में है, वाइफ, हस्बैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मदर, फादर, चाइल्ड, because it has been written by myself. Now whatever I create always is completely in my control. तो साइंस क्या बताएगी हमको कि तुमको ये रिश्ता मिलेगा, तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा होगा। तो व्हाट इज साइंस डूइंग? इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज 100% राइट। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट आई हैड डन yesterday. तो yesterday का तो पूरा क्लियर है, I have written, so that is what science is writing. But science ये नहीं लिख रही है कि अभी आप जो कर लिया, अब इसको बेटर कैसे करें जो कल आपका ऐसा नहीं हो, वो नहीं बताती है। तो साइंस इज नॉट राइटिंग, साइंस इज जस्ट राइटिंग व्हाट आई हैव डन, बट साइंस इज नॉट राइटिंग what you can do after the destiny. वो साइंस लिख नहीं रही है। तो इसलिए हमको इनकम्प्लीट, हमको खाली डरा दिया या खुश कर दिया कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है, बट अभी मुझे क्या करना है, हो गया। और जो होने वाला है, इसलिए कहा कि होने को कोई टाल नहीं सकता। Everyone has to face it. Why they have to face it? Because they've written, they have themselves written. इफेक्ट को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। तो किसी ने कहा कि क्योंकि मुझे वो इफेक्ट मिलना था, इसलिए मैंने ये किया। मुझे ये इफेक्ट मिलना ही था। देखो, क्योंकि मेरे को ये रिश्ता मिलना था, इसलिए मैं हम लोग इस कॉलेज में मिले और इस तरह से हमारा इंटरेक्शन हुआ। ये कहेंगे ये होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज मेरी हेल्थ खराब होनी थी इसलिए मैंने खाया, या क्योंकि मैंने खाया तब मेरी हेल्थ खराब हुई? व्हाट इज अप्रोप्रिएट? ए, क्योंकि मैंने खाया इसलिए हेल्थ खराब हुई, या बी, क्योंकि हेल्थ खराब होनी थी इसलिए मैंने खा लिया? ए या बी, क्या अप्रोप्रिएट? ए अप्रोप्रिएट, क्योंकि यही होना था, क्योंकि मैंने खाया ना, तो नेचुरल है। तो देयरफॉर व्हेन आई से बी करते हैं, तो मतलब क्या होगा? आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर द इफेक्ट, अनअवेयर कि वो कॉज जो था वो पूरा मेरे हाथ में है, वो पूरा मेरे कंट्रोल में है, वो पूरा मेरी चॉइस है। एंड नाउ, अब सपोज, तो इसलिए एक बार गलती हुई, उसके बाद एक बार असर हुआ, उस गलती का कुछ भी मिला मुझे, इट कुड बी मे बी इन 1 minute, 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 months, 5 years, 50 years, मे बी 50 births, पर वो गलती करी है ना, कभी भी इसका इफेक्ट आएगा ही। कुछ जल्दी दिखाई देगा, कभी बाद में भी दिखाई दे सकता है, बट आई हैव रिटन माई डेस्टिनी। एंड नाउ इफ आई हैव रिटन इट, तो मुझे बहुत प्रिविलेजेस मिल गए। आई गॉट वेरी गुड थिंग, लाइक मेरे फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे कोई भी पैसों की कमी नहीं है, मीन्स देयर आर मेनी गुड प्रिविलेजेस। इफेक्ट है, बहुत अच्छा इफेक्ट है, बट इज दिस इफेक्ट फाइनल? इज दिस इफेक्ट फाइनल कि मुझे बहुत अच्छा मिला है, सब कुछ बहुत अच्छा है, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर मी एवरीवेयर, बट इज दिस फाइनल? Every effect में आई एम क्रिएटिंग
a cause. I'm creating an energy. It could be a thought energy, it could be word energy, or it could be action. केवल करना ही कर्म नहीं है. Any energy is an action, is a कर्म. तो अगर मैं वो उस समय मुझे बहुत ईगो आ रहा है, मेरे पास बहुत कुछ है, दूसरे के पास नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. नाउ ऑल दिस causes I'm creating. What have I to be confirmed about? जितना ये क्रिएट कर रहा है उतने एक एक कर्म के, एक एक थॉट का मुझे असर होना है, मतलब मुझे उसका इफेक्ट मिलेगा ही. अब आप देखो, हम लोग कई बार सारे दिन हम लोग फिल्म देखते हैं. अब किसी ने कहा चलो ठीक है, अपने साथ जो हो रहा है उसका तो हम कुछ स्टॉप नहीं कर सकते, हम फिल्म देखते हैं, 3 घंटे फिल्म, मतलब इस टाइप के देखते हैं. फाइन, देखो. अब अगर वो जो देख रहे हैं वो अगर मेरी इमोशंस क्रिएट कर रहा है, वो गलत, तो मेरे को इधर गुस्सा आ रहा है. वहां वो इनजस्टिस कर रहा है, मुझे इधर बहुत दुखी हो रही हूं, मैं रो रही हूं. वहां वो रो रहा है, मैं इधर रो रही हूं. सो व्हाट ऑल आई एम क्रिएटिंग नाउ, not only it is becoming a sanskar, not only that I'm making it evident that my thoughts का remote control पूरा outside है, but at the same time every little negative emotion I'm creating whilst watching the scene, I'm creating a new karma. अब 3 घंटे में अब खुद सोचो, जबरदस्ती फ्री में, नथिंग डूइंग, आई एम क्रिएटिंग. इफ आई एम क्रिएटिंग दोज इमोशंस, और कई बार तो हम वो इमोशंस के कर्म भी बोल देते हैं, और कभी कभी कर्म भी कर लेते हैं, बट माई केवल क्रिएटिंग एन एनर्जी, आई एम क्रिएटिंग अ कर्म. तो इसलिए देखो, 4 घंटे देखो, बार बार देखो, but not that scene should become my emotion, because जब वो बाहर का इधर का मेरा इमोशन बन जाएगा, then it will become very, because इस इमोशन का मेरे को असर होना है, मेरे को इफेक्ट मिलना है. तो इसका मतलब मेरे को कितनी बार उसका इफेक्ट मिलता जाएगा, जितनी बार मैं करती जाऊं. सो वी हैव टू, एक होता है रियल ड्रामा, and then because it will become here, I will understand कि ऐसे jealousy किया करते हैं, ऐसे गुस्सा किया करते हैं, जमाना ऐसे होता है, लोग ऐसे धोखा देते हैं. So I'll create a conclusion, I'll create a thought, so that thing has become my real drama, and now whatever I will do will be based on this, not on that. इसलिए कहते हैं मीडिया बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालती है. सो इवन वन इज दिस रियल ड्रामा विच हैज नथिंग टू डू विथ माई एक्चुअल लाइफ, बट स्टिल आई एम क्रिएटिंग द कॉज, द कर्मा बिकॉज ऑफ दैट. और फिर बाद में रियल में वैसे कुछ हो, रियल में मेरे साथ कोई जेलेसी करता है, रियल में मेरे साथ कोई धोखा देता है, तो इक्वेशन सेम होगा. उसका मुझे असर होता है, तो इसका भी, मतलब मेरा माइंड कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड, तो उसका भी मेरे को उतना ही असर हो. और ऐसे करते करते मैं, आई एम केवल गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड थिंग्स. व्हाट एम आई क्रिएटिंग? एंड इफ दैट एटमॉस्फियर इतना पॉजिटिव नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, और मेरे को हर एटमॉस्फेयर का इन्फ्लुएंस होता जा रहा है,
मेरे क्या होते जा रहे हैं कर्म? What have I to be prepared of? I am creating according the destiny. तो इसलिए the moment we write it, बहुत एक अच्छा स्लोगन माइंड में रखेंगे हम. The moment we create a cause, that moment we are writing the effect. So the cause could be by thought, by word, or by action. But I am writing the effect. अब फिर भी unaware, मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा ये टेबल क्यों रखी, समझ में नहीं आता, तुम लोग ऐसे करते हो, मैं कंटिन्यूसली ब्लेम करती गई. तो ब्लेम भी किया और टेबल को उठाया भी नहीं. तो क्या हुआ, पहले चोट लगी, उसमें और कर्म खराब किया, मतलब और नेगेटिव और कॉजेस किया, और फिर उस टेबल को फिर से वैसे ही रखा. अब नेक्स्ट डे अगेन आई हैव टू कम टू दैट प्लेस, क्योंकि मैंने कॉज स्टार्ट कर दिया था. अब अगली बार वो पेन वापस चोट लगेगी, क्योंकि टेबल वही है. अब जो पेन होगा वो उतना ही होगा या ज्यादा होगा? Will it be more, 1A, or will it be less, or will it be the same as yesterday when I kept the table day before yesterday? That time yesterday I got that hurt. So the quantum of hurt, will it be more or the same? More. क्यों? क्योंकि गलती, चोट पे चोट लगेगी. अभी कल की मेरी चोट लगी हुई है, उस पे मेरे को और चोट लगी. एंड yesterday I just blamed everybody around me. तुम्हारे कारण आज मेरा बिजनेस में लॉस हुआ, तुमने ऐसा किया ना, इसलिए वो व्यक्ति ऐसा है, तुम लोगों ने ऐसा किया बॉस ने, इसलिए बॉस मेरे से नाराज है. तो मैंने हमेशा इन लोगों को ब्लेम किया. तो मतलब चोट लगी थी, कोई मेरे से राइट बर्ताव नहीं कर रहा है, और फिर मैंने नेगेटिव वापस क्रिएट किया. तो अब कल तो लगने वाली है वापस. इसीलिए कहते हैं वो डेस्टिनी मेरी डबल होके आती है. वैसे डबल नहीं है, वो तो कल किया उसका मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी वो चोट लगी थी, उसके ऊपर वो चोट लगेगी. और अभी कब तक लगती रहेगी? कितने दिनों तक लगती रहेगी? क्योंकि वो टेबल आज भी मैंने नहीं उठाया चोट लगने के बाद. क्योंकि अब मेरा स्ट्रॉन्ग संस्कार बन गया कि जैसे ही चोट लगे ब्लेम करो, गुस्सा करो. जैसे ही कोई मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं तुरंत उसको चिल्लाओ. आई टैकल इट इन दैट नेगेटिव वे. दैट इज बिकम माई संस्कार. तो नाउ कल वापस कोई उसका मुझे इफेक्ट होना ही है, और फिर मेरा नेगेटिव वो चोट लगेगी. और उस चोट लगने के बाद अब मैं कह दूंगी पता नहीं मेरा क्या खराब है, मेरी क्या तकदीर में है कि ये सुधरते ही नहीं है. मैंने कितनी कोशिश कर ली. कोशिश क्या की? हमने कोशिश की या इंक्रीज किया? स्कोल्ड किया, ब्लेम किया, रिवेंज लिया, इधर नेगेटिव क्रिएट किया. तो कोशिश करी या मैंने इंक्रीज करी? इंक्रीज करते गए. तो इंक्रीज किया, वापस मिलेगा. कब तक मिलेगा? जब तक ये उत्थान का सेशन ये नहीं करेगा तब तक वापस मिलता जाएगा. क्योंकि मैं एवरी रिएक्शन, एवरी डेस्टिनी, एवरी privilege or anything, whatever is coming to me, I will always blame you.
आई विल ऑलवेज ब्लेम दैम। तो मुझे तब तक मिलता रहेगा जब तक आई डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट हर्ट, ऑफ दैट चोट, कि यस ये मेरे टेबल इधर रखने के कारण चोट लगी, न कि तुम्हारे नहीं उठाने से चोट लगी। तो किसी भी कारण से, चाहे फिर वो बीमारी का रूप आ जाए, चाहे वो संबंध हमारे ठीक नहीं है, चाहे पता नहीं मैं शेयर बाजार में डालती हूँ, मेरा पता ही नहीं वो शेयर डाउन हो जाता है, वॉट एवर रिजल्ट कमिंग टू मी, until I don't take that responsibility, it will go on, चोट पे चोट लगती रहे। तो इसलिए everything what we create is a choice, and that everything that comes from outside is my destiny. So सबसे बड़ा इसलिए कहा destiny is in your hands, मतलब every time what I create, if I can just take it under my control, I have to create always positive. So now if I'm watching any scene, it could be real or it could be real. I'm watching any scene, but I can create good wishes and I can create positive thoughts कि चलो नहीं ये अच्छा है, ये सुधर रहा है, ये सुधर जाएगा। Means I just can create positive thoughts. This is the method I can deal with others' mistake. Not by creating our own mistakes, our own negative karma, I can deal with others' mistakes. इसलिए एक मिस्टेक करता है और दूसरा हम मिस्टेक करते हैं, तीसरा वो करता है, और दिस इज हाउ सतयुग से आज कलयुग हो गया। केवल हम एक ही अपनी मिस्टेक को इंक्रीज करते रहे। तो अब क्या करना है, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, किसने भी कहा, लेकिन मुझे अपनी क्रिएशन बहुत पावरफुल रखनी, चाहे मेरी बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए और उस बीमारी का रीजन एविटेबल क्लियरली दिखाई दे, विजिबल रीजंस है कि इसने ऐसा किया ना, इसके कारण ये बीमारी आ जाए, दिख आ गई, इस कारण मेरा आज ये नुकसान हुआ, क्लियरली विजिबली मुझे दिख रहा है, बट स्टिल whom will I make responsible? Only myself. I won't make anyone else responsible. This is called dealing with others' mistake. Because कभी भी अगर ये कंटिन्यू होता जाए, पहला वुंड स्मॉल होता है, फिर उस वुंड पे दूसरा वुंड थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उस फिर और होता जाएगा, इट विल बी अ ग्रोव डीप संस्कार, एंड फिर तो वो नेचुरली वुंडेड स्टेज में है। इसलिए बचपन से ही, क्यों व्यक्ति बहुत गुस्से में है, बचपन से ही बहुतों की कंप्लेंट्स है, बहुत जिद्दी है, बिल्कुल किसी की नहीं मानता है, सो दैट सोल इज गोइंग ऑन क्रिएटिंग नेगेटिव द कर्मा which has a negative destiny, which is a not so good destiny. क्यों? क्योंकि उसने there was no reason, no understanding for it. तो जिस दिन ये विजडम आ जाएगी, उस दिन से मेरा क्रिएशन बहुत पावरफुल हो जाएगा। एंड इफ एट ऑल नेगेटिव हुआ, बट एटलीस्ट आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तुमने किया गलत, इसने किया गलत, लेकिन रीजन मैं हूं। दिस इज अ बोल्ड स्टेप फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ योर लाइफ। द बोल्डेस्ट स्टेप ऑफ लाइफ इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स मिस्टेक इन योर सेल्फ। अपनी मिस्टेक की जिम्मेवारी लेना, ये तो विजडम है, लेकिन बहुत बड़ी बोल्ड स्टेप है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस।
नहीं तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगा हम करते जाएंगे और फिर उसको कहेंगे नेचुरल है ना। अब यहाँ फिल्म में ये सीन देखा तो नेचुरल है ना, ऐसे होगा ही ये सीन, ये देखा तो नेचुरल है ना। इसलिए आप देखो, जितनी बार देखना है देखो, विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि इधर इसका इतना सा भी असर नहीं हो रहा। इतनी डिटैच्ड अंडरस्टैंडिंग, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, डिटैच्ड फीलिंग से जब मैं कुछ भी देखती हूँ, then it is not a karma. But if I'm getting affected, I'm creating numerous, you just don't know, एक दिन में कितने गलत कर्म करते जाए, कितनी मिस्टेक्स करते जाएंगे, क्योंकि जब उस मिस्टेक्स का परिणाम होता है हम कहते अच्छा ऑल ऑफ अ सडन कैंसर, ऑल ऑफ अ सडन अच्छा खासा चल रहा था ये हुआ। ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता है, ये सारा प्री डिस्टाइंड था जो हमने किया हुआ। There is nothing called all of a sudden. तो ये अंडरस्टैंडिंग, if we go on responding in the same manner, means I am creating wound after wound. क्योंकि फिर मैं वैसे आऊंगी फिर चोट लगेगी, फिर मैं वैसे आऊंगी फिर चोट लगेगी, और एवरी टाइम वो चोट बड़ा बड़ा, इतना बड़ा कि एक दिन मैं चल भी नहीं पाऊंगी। अब जब वो, बिकॉज अब वो इतनी बड़ी बीमारी हो जाए ना, अब तो वापस चलना, दैट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन। चल ही नहीं पाएंगे क्योंकि अब वो वापस उस स्टेज में वैसे आएगी नहीं, चांस ही नहीं मिलेगा। मतलब अब वो ऐसी मेरी सिचुएशन आ गई कि मैं कुछ भी चाह कर भी अच्छा सोच ही नहीं सक रही। इट्स सच अ पावरफुल सिचुएशन, आई एम जस्ट नॉट एबल टू थिंक इट। इतनी विजडम है नहीं, इतना डेस्टिनी मेरी इतना पावरफुल है नहीं। तो therefore when it becomes uncontrollable, until it becomes uncontrollable or unexpected, we have still that choice. अभी भी मेरे हाथ में है और बाद में भी मेरे हाथ में रहेगा, प्रोवाइडेड अगर मेरी बहुत बड़ी चोट आ भी गई, आज मेरे पास बहुत बड़ी बीमारी आ भी गई, लेकिन क्योंकि मुझे फॉर्मूला क्लियरली पता है, विथ कन्विक्शन मुझे पता है कि ये जो भी बात हुई है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट, आई कैन immediately start creating powerful thoughts. In other words, diluting the present destiny and creating a beautiful future. It is completely in my hands. So what do I do? क्या करना है? डिसीजन हमारे हाथ में है। सिंपल फॉर्मूला है, whatever any energy created, let me be aware I am creating my destiny. So it could be a thought energy, it could be word, or it could be an action. अब मैंने एकदम सिंपली बोल दिया, अरे अरे पागल, समझ में नहीं आता है, तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल बात बोली। अरे ये तो ना बहुत ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, हम तो वर्ड्स भी नहीं बोलते, कभी वेरी कैजुअली हम बोल देते हैं। एनर्जी क्रिएट की ना, चाहे कैजुअली की, बॉल तो मार दिया ना, फेंक दिया ना, अपने हाथ से चला गया ना, मेरा डेस्टिनी भी चली गई। So the moment therefore we have to very much clearly understand, right in my mind, moment I create the response, I'm writing my destiny. तो एक तो ये होमवर्क हमें करना है, और दूसरा, एनीथिंग कमिंग टू मी, आई एम अवेयर इट्स माय ओन पास्ट मिस्टेक। सी, तो therefore I will never take that कंटेंशन कि मुझे तो याद नहीं कभी मैंने अरे भी बोला होगा लाइफ में, कभी मैंने इतना सा भी गलत भी बोला होगा, नहीं आया है
मतलब तुम्हारी कहीं ना कहीं वो मिस्टेक थी। ड्रेस चेंज होता गया, पर ड्रेस आज येलो हो गया, व्हाइट हो गया, वो अलग। सो कैन वी डू दैट? तो क्या हो जाएगा? एवरी मिनट देर इज एन अवेयरनेस ऑफ व्हाट आई थिंक, व्हाट आई स्पीक एंड व्हाट आई डू। दिस इज कॉल्ड विजडम। तो इसलिए विजडम होगा, ये हमारे लिए अच्छा है, और नॉट ओनली हमारे लिए अच्छा है, हमारे साथ जो जो जुड़े हुए हैं उन सब के लिए अच्छा होगा। And though it be my family, though it be my children, so if I am benefiting, I am creating fortune of many people. It's not me alone. And therefore, if I am at loss, I'm creating loss for many people. All those are influenced by me. All those are impacted by me. मम्मी ने गुस्सा किया ना, इसलिए मैं नाराज हो गया। तो all those are impacted by me. I'm creating their fortunes. तो इसलिए अपने आप को बहुत सटली वॉच करना है कि कुछ भी हो जाए, मेरा ये तो नहीं निकलता है, बहुत अच्छा हुआ, उसको अपने कर्मों का फल मिला, ये भी जेलेसी का स्टेटमेंट मुझे ही मिलने वाला है। इट इज जस्ट फॉर मी, नॉट फॉर एनीवन एल्स। तो अपने आप में हम 2 मिनट्स एनर्जी लेते हैं, डीप इनसाइड वॉच करते हैं और आगे के लिए प्रॉमिस करते हैं। अपने आप को सब बातों से फ्री करेंगे। स्वयं को देखें इन अ बिग प्लेटफॉर्म ऑफ मेनी ड्रेसेस, मेनी कॉस्ट्यूम्स। शरीर रूपी ड्रेस कितने बार हमने किया, ड्रेस को देख रहे, अभी तक जो भी हुआ मेरा अपना कॉज था। अब से मैं मेरी डेस्टिनी को बहुत पावरफुल, प्योर, पॉजिटिव बना रही हूं। जो भी मेरे साथ रोल प्ले कर रहे हैं, आत्मा है, बहुत जन्मों के संस्कार हैं, ये प्योर थॉट करके शक्ति देनी और soul, he will improve. Stop. I will just create pure thoughts for everybody around. परमात्मा की एनर्जी रेस के रूप में मुझे मिल रही है, which is helping to create positive thoughts. बाबा ऊपर, मैं सोल नीचे। I am a powerful soul. My destiny is very pure, powerful. And I am going to continue my destiny to be very
powerful by creating a very pure energy of thought, word, and action every second. Shanti. Thank you, Lily. Thank you for the session. And thank you everyone for attending. Let us meet the next week for the last session on this topic. So it will be a question and answer session. So please come if you have any questions, please come prepared. Thank you, everyone. Have a nice day. Om Shanti.